everyone, this is Tanya here from EduTV, and I welcome you all to EduTV's exciting program, Journey as an Educationist, a series where we explore the inspiring journeys of leaders who have shaped the world of education. Today, I'm delighted to have with us Dr. Abhishek Singh, the professor of accounting and finance with over 2 decades of teaching research experience, and he is currently the director at RAMT Mathura. Dr. Singh has contributed extensively to management education through teaching, research, and institutional quality initiative. And we look forward to learning from his journey and insights today. Welcome to the program, sir. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much for joining us today, sir. Dr. Singh, to start with, I would want to understand from you that what inspired you to choose the education as a lifelong career, particularly talking about the field of accounting and finance, please. So thank you for inviting me for this particular in your tech company, which is, I think, in field of media. Uh, Actually, when I joined 2002 as a master degree in Jivaji University, Gwalior, I did my MCOM from Jivaji University, Gwalior, Madhya Pradesh, 2002, and completed 2004. And that time, that earlier I was in Calcutta because I did my graduation in 12th and 10th from the West Bengal, where my father is working as a clerk over a coal mines India. So मैक्सिमम बंगालीज आर मैक्सिमम आई मैंने जो देखा है सो वो लोग हमेशा टीचिंग की बात ज़्यादा करते थे बंगाल में, और वो एजुकेशन से उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो उनको जो बचपन से मैं उनको फॉलो करता था, बंगाली प्रोफेसर्स थे जब हम लोग बीकॉम कर रहे थे बंगाल में, उनका जो नॉलेज लेवल था उनको देख के लगता था कि टीचिंग इज़ द बेस्ट करियर फॉर मी। एंड बहुत इंजॉय करा मैंने। जैसे बीकॉम जब हम कर रहे थे तो उस समय इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर्स थे, उनके साथ हमने काफ़ी नॉलेज शेयर करते थे। अकाउंट्स के प्रोफेसर के साथ नॉलेज शेयर करते, बिकॉज मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा था क्लास 11 से ही। सो वो मुझे इंस्पायर करा। मुझे अल्टीमेट मुझे सीए करने का बहुत इंटरेस्टेड था, बट मुझे ये टीचिंग करियर लोगों को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा है, जिससे मैं सोशल सर्विस में ज़्यादा काम कर सकता हूँ मार्केट में। तो वो इंस्पायर किया मुझे, इसलिए मैंने फिर सीए ना करके मैंने एमकॉम किया, देन मैंने फिर पीएचडी, एंड आफ्टर दैट फॉर कम टू द एजुकेशन फील्ड। तो दिस इज माय इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, मैम। Thank you so much for sharing that with us, sir. Sir, you've got 22 years of experience in teaching. So या can you tell us something about your journey as to starting from year one till 22nd year? आपका journey कैसे evolve हुआ है, sir, as an educator? When I joined in Delhi, a very small institution which is called Pitampura in Delhi, I joined as a lecturer over there to start my career in education. And 2 and 3 years I spent in Delhi as a lecturer position in a private college. Then after in 2007, I got a chance in GL Bajaj Group, Greater Noida, as a senior lecturer over there. मैंने आपको पहले ही बताया मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा था, तो मैं अकाउंट्स को ही मैंने अपना करियर बना लिया। उसके बाद 2007 में जब मैंने जेल बाजार ग्रेटर नोएडा ज्वाइन किया, तो वहाँ से मैंने अपना करियर को बेसिकली स्टार्ट किया। मेरा एक्सपीरियंस 3 इयर्स बिफोर था, बट बेसिकली जो एक एक्चुअल जो मेरा एजुकेशन स्टार्ट एज ए टीचर स्टार्ट हुआ वो 2007 से जेल बाजार ग्रेटर नोएडा स्टार्ट हुआ। बट मुझे ऐसा लगता था नहीं, मुझे कुछ और करना है एग्जैक्टली क्योंकि मुझे लगता था नहीं ये मेरा मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं है, मुझे इससे और आगे जाना है। तो मैं उसके लिए अपना प्रैक्टिस करता रहा बच्चों के साथ और अपने करियर के लिए आगे बात करता रहा। तो इसी बीच में मुझे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसूर रांची में चांस मिल गया। अ, मेरा सिलेक्शन हो गया उस कॉलेज। यूनिवर्सिटी इज वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन द इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, बट आई गॉट सेलेक्टेड इन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। तो 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और 2009 से लेकर 2024, almost 17 years I spent over there in accounting and finance area. I teach so many subjects over to BBA and MBA students last 17 years. इसी बीच में मैंने बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एमिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में फाइनेंस के लेक्चर्स लेना, तो ये सारी चीज़ें मेरा करियर का पाथ रहा है इन बिटवीन दीज इयर्स। या Right, sir. Sir, thank you so much for sharing that input with us. Sir, we have seen for students, especially the senior students and during the college life also, accounting and finance normally students को बहुत difficult subject लगता है. That's what we have observed. I mean, when I was also in school or in the college,
अकाउंटिंग और फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट था तो बच्चों को नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट लगता है. So how do you make it more practical for the students is what I would want to understand, that what are the things that you do to make it more engaging and practical for your students, please? Actually, when I teaching in the classroom to BBA student basically and MBA students, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीबीए बैकग्राउंड में साइंस बैकग्राउंड से भी आते हैं आफ्टर ट्वेल्थ, बिकॉज बीबीए इज नॉट फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, इट्स फॉर ऑल. सो आर्ट्स से भी आते हैं, साइंस से भी आते हैं, तो उनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता बेसिकली. तो उनको मैंने बेसिक चीज़ें जैसे डेबिट एंड क्रेडिट, ऑल जो बेसिक अकाउंट्स के फंडे होते हैं वो मैं क्लियर कराता हूँ. वो अपना एक ट्रिक होता है कैसे आप बच्चों को समझाते हैं. सो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर उनको समझाना, मार्केट में जो चल रहा है, इंडस्ट्री में जो चल रहा है, तो बच्चों को समझ में आ जाता है. सो स्टूडेंट कैन इजिली गॉट ऑल दी एक्सप्लेनेशन विच इज आई गिवन इन द क्लासरूम. देन आफ्टर दैट जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं उनका भी सेम पोजीशन, वो भी डिफरेंट फील्ड से आते हैं. कभी कभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी एमबीए के स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, उनको भी पता नहीं होता अकाउंट्स का. तो उनको मैं ले जाता हूँ कंपनी के बैलेंस शीट्स वगैरह, जैसे जो रियल लाइफ कंपनी बैलेंस शीट्स हैं. एंड एनी कंपनीज यू कैन गो फॉर द मनी कंट्रोल डॉट कॉम और स्किनर डॉट कॉम. आप जाके वहाँ पे आप अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ पे या कितने भी ईयर्स के आप निकाल सकते हो आप. तो मैं उनको ये दिखाता हूँ कि आपको बेटर है आप डेबिट और क्रेडिट सीखेंगे, बेटर है कि आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करो. तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं रीड कराने के लिए उनसे बात करता हूँ, उनको लाइव बैलेंस शीट दिखाता हूँ, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है, ऑल, तो उनको बड़ा एंजॉय करते हैं उस सेशन को, बिकॉज वो लाइव दिख रहा है. और वहां से मैं उनके एक एक एंट्रीज, एक एक डेटाज, एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस को मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, तो इजिली वो उनको अचीव हो जाता है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, फंडामेंटल बेसिकली क्या है, जब भी मैं IIM कोझिकोड गया था 2016 में, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर से भी एक डिस्कशन इसी बात पे हुआ कि वाई बी चूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MBA स्टूडेंट, वी आर यूजिंग द लाइव बैलेंस शीट एंड लाइव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू. उनको उनको लाइव चीजें दिखाओ आप, तो वहां से आप ज्यादा समझ पाएंगे. आप डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली. तो बेटर है कि आप उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ आप, जो प्रैक्टिकल है, जो उनके काम आएगा. तो जनरली वी आर नॉट गोइंग टू मेक अकाउंटेंट, हमें अकाउंटेंट तो नहीं बनना है. बेसिकली वी आर गोइंग टू मैनेजर. तो मैनेजर्स के लिए क्या होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर. द बुक नेम इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, नॉट फॉर द अकाउंटेंट. तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि हम बच्चों को टीच क्या कर रहे हैं. तो बेसिकली जब आप मैनेजर्स बना रहे हो तो उनको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाओ, उसी के बेसिस पे वो रिपोर्ट बनाएंगे एंड कंपनी को प्रेजेंट करेंगे. तो हम उनको ज़्यादा ये चीज़ें हमेशा, और आज की डेट में बहुत जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. CA में भी है, CFA में भी है, और सारे IIMs में भी ये यूज़ हो रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस बोल के एक बुक उनका सब्जेक्ट भी है. तो ये सब्जेक्ट है जो हमारा मेरा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, मैं बच्चों को यही टीच कर रहा हूँ, इससे बच्चों को ज़्यादा ईजी समझ में आता है. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंस. अकाउंटिंग फाइनेंस टफ नहीं है, बेसिकली उनको टीच करने का एक कंसेप्ट होना चाहिए. आप कैसे टीच कर रहे हैं बच्चों को, कैसे आप मैथोलॉजी आप यूज कर रहे हो आप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely right, sir. Practical exposure up, and how are you teaching your students? How are you keeping them engaged Yeah. is what is very, very important. So, talking about you've worked very closely with the NAC and NBA processes. Yeah. आप क्या टिप्स या क्या क्वालिटी एरियाज अकॉर्डिंग टू यू is where the institutions must focus on today? Can you give us some of those? बेसिकली मैम, NAC और NBA का जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटी लेवल में, बेसिकली अब तो कॉलेज लेवल में भी यूज होता है, यूनिवर्सिटी लेवल में जो हम लोग जनरली यूज करते हैं एकेडमिक्स. तो जब भी NBA बेसिकली इज द पार्ट ऑफ योर करिकुलम बेस्ड, आपके करिकुलम में क्या क्वालिटीज़ है, इंडस्ट्री बेस्ड आउटकम्स हैं या नहीं है, तो वो NBA का प्रोसेस है मैम. आपके सिलेबस अकॉर्डिंगली, NEP 2020 के अकॉर्डिंगली है या नहीं, आउटकम क्या है. तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर भी करती है, जितने भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं. अदरवाइज आपको NBA का ग्रेड नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. सेम एज ए नैक का भी है. नैक आपके ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, आपका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, इवन टीचर्स, हाउ मेनी टीचर्स या प्रोफेसर्स आर देयर, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं, उनको सैलरीज आप क्या दे रहे हो आप. सो ऑल पैरामीटर मेजर्ड इन नैक. तो नैक में अगर आप सारा पैरामीटर, जैसे गवर्नमेंट में तो क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट देती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स. बट बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे चीज़ें सिस्टमाइज नहीं होती हैं. तो गवर्नमेंट का फोकस उन्हीं यूनिवर्सिटीज पर है जिससे वो
चीज़ों को एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली चला सकें। सो नैक करने के लिए मेरा सिंपल सा एडवाइस है, गवर्नमेंट तो फॉलो करती है रूल्स, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसी से आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, बिकॉज विदाउट नैक और एनबीए आपके यहाँ एडमिशन्स नहीं होंगे, आपके कॉलेज को रैंकिंग नहीं मिलेगा, आपके कॉलेज को रिसर्च नहीं मिलेगा, ग्रांट्स नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट्स के। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको आप पीछे चले जाएंगे। तो ये रीज़न होता है नैक एनबीए का अच्छा करने के लिए। तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। और जब से आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हो, डे वन, फ्रॉम डे वन टू अप टू 5 years, यू हैव टू मेक योर डेटा अकॉर्डिंगली। each and every papers, each and every documents you have to maintain in your department, otherwise आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दिस इज द माय सजेशन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। आप जब भी नैक कराते हो, आप स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन, आप डेटास और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखो। जो भी नैक के रूल्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करो। आप अपनी टीम बनाओ, नैक की टीम्स होती हैं कॉलेजेस लेवल पे, और उनको उन नैक की टीम्स को आप लेके हमेशा मॉनिटरिंग करो, आपके रिव्यूज करो, एक्सपर्ट गाइडेंस लें आप, जिससे आपका नैक का रिजल्ट बेटर हो। तो दिस इज माय सजेशन। Thank you so much for your input, sir. Sir, you've presented and published extensively in reputed institutions and journals. So, how has research influenced your teaching and thinking, please? Basically, I published 24 papers in Scopus, ABDC, and Web of Science, and as well as UGC Care Journal also. Earlier, when I joined BIT Ranchi in management department, there is no scope of UGC Care journals. They always follow the Scopus. सो उनका क्वालिटी आप समझ सकते हो, इज़ वेरी बेटर है, बहुत अच्छा है। वो अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इन ईच एंड एवरी सेगमेंट, लाइक इन PhDs ऑन इन एकेडमिक्स और टीचिंग क्वालिटी। तो हम लोगों ने BIT मैस्ट्रा में 18 years में, 17 years में बहुत कुछ सीखा वहाँ से। रिसर्च के बिना आप एकेडमिक्स में अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, कहीं भी आप जाते हो, आप आपसे सबसे पहले क्वेश्चंस आता है योर क्लासरूम टीचिंग, देन सेकंड योर रिसर्च। आप रिसर्च अच्छा नहीं करेंगे तो आपको कोई भी रिकग्नाइज नहीं करेगा, और आप जो चाहते हैं वो आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। तो रिसर्च आपको करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं। पहले क्या होता था, बिना टूल्स के हम करते थे, ट्रेडिशनल मेथड था। अब तो AI ने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त चेंज कर दिया एकेडमिक्स में कि आप उनके टूल्स को भी आप सीख कर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं अपने एकेडमिक लाइफ में आपको मैं क्लियर बताऊं, मैं अपने कॉलेज में भी बच्चों से भी कहता हूँ, अपने टीचर से भी कहता हूँ, आप AI को यूज़ करो आप। तो मैं AI बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस एनालिटिक्स टूल लाइक पावर BI एंड एक्सेल एडवांस विच इज़ यूज बाय को पायलट। बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपकी टीचिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है और रिसर्च भी अच्छा होता है। Thank you so much for your input, sir. Sir, talking about the current students, what advice would you want to give to these students who are aspiring to build up a career in finance and management, please? मैम, माय सजेशन टू ऑल द यंगस्टर्स हु आर गोइंग टू आफ्टर ट्वेल्थ, आप ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे ज्वाइन करेंगे इन अदर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, तो उनका फोकस, बहुत से कॉलेज जैसे मैं नोएडा में हूँ, तो मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो दे आर गोइंग टू ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर BCom। तो BCom करते हैं वो, बहुत सारे BBA के कोर्स के लिए परस्यू करते हैं। तो जो BBA के लिए कर रहे हैं वो बेसिकली दे आर गोइंग फॉर MBA। एंड जो BCom कर रहे होते हैं वो बेसिकली कोशिश करते हैं कि वो CA या CFA के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो डिफरेंट अपना पैरामीटर्स है, आपको अपना पैरामीटर गोल सेट करना पड़ेगा। आप बनना क्या चाहते हो, आप आपको प्लान करना पड़ेगा। ट्वेल्थ के बाद आपको प्लान करना है कि आपका विच कैरियर, कौन सा करियर आपके लिए बेटर है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है। पहले BCom सिंपल टीचिंग के लिए होता था, अकाउंटेंट बनने के लिए होता था। अभी BCom और MCom में भी स्पेशलाइजेशन आ गया है। सो आप BCom में बहुत सारे सेगमेंट, मार्केटिंग से भी कर सकते हो आप, ऑपरेशन से भी कर सकते हो आप, फाइनेंस से भी कर सकते हो, अकाउंट से भी कर सकते हो आप, सेम एज BBA ऑल्सो। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप करियर को कौन से लाइन में ले जाना चाहते हैं, आप BCom में क्या करना चाहते हैं, BBA में क्या करना चाहते हैं, फर्दर आपने क्या करना है, MBA करना है या नहीं करना है। तो आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट करियर है इन कॉमर्स फील्ड में, वो आ रहा है CFA। अगर आपने फाइनेंस में एक्सपर्ट होना तो आपको यू हैव टू गो फॉर CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपने अकाउंट्स फील्ड में जाना है तो देर इज नो चॉइस ऑफ CA। और आपने फाइनेंस, जो मैंने आपको बताया, और आपने एक नया फील्ड आ रहा है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM is very popular sub area in this is now today in the academic industry। FRM के अंदर अब AI भी आ गया है। मैंने जैसे आपको बोला कि AI बहुत AI इन FRM,
पहले एफआरएम था, अभी एआई इन एफआरएम। सो ये जो कंसेप्ट आ रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मार्केट में इससे बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही हैं बच्चों को, बिकॉज यू नो इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। तो आप बिना एआई के, बिना जो एआई टूल्स है उसके बिना, आप ना तो सीए में आपको वैल्यू मिलेगी, ना आपको बीकॉम में मिलेगा, ना आपने बीबीए में मिलेगा, ना एमबीए में मिलेगा। सो आपने जो भी कुछ करना है, आपने टेक्नोलॉजी साथ में यूज करना है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले होता था सब कुछ इजी हो जाता था, अभी आपने सीए भी बनना है तो आपको एआई आना चाहिए। अभी आपने सीएफए भी बनना है तो आपको एआई आना चाहिए। एआई मीन्स यू हैव ए गुड इन एक्सेल, एडवांस एक्सेल एंड को पायलट एंड पावर बीआई विच इज अ विजुअलाइजेशन टूल। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपको पाइथन आ रहा है, नहीं कोई इशू नहीं है, बिकॉज इट्स कोडिंग। बट आपने डेटा एनालिटिक्स के टूल्स आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर इन गोइंग टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस फील्ड। तो मेरा सजेशन स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप जो भी करो, आप करियर क्लियर करो, और आपने एआई का टूल्स जरूर सीखना है इन फील्ड ऑफ कॉमर्स। सो इट एआई टूल्स मीन्स पावर बीआई, एसक्यूएल, को पायलट इन विथ एक्सेल और पाइथन। सो वट एवर यू चूज, या आप पावर बीआई सीख लो या टैबलू ले लो, अब जो भी आपको बेटर लगता है, तो कोई ना कोई एक टूल आपने लर्न करना है और सीखना है। Thank you so much, sir. I'm sure all our viewers, especially the students, will definitely benefit about through your advice in terms of the different career options that they have, the new careers that they have available now. So, last question for today's episode: what continues to motivate you after more than 2 decades in the field of education? बेसिकली व्हेन आई गो टू द क्लासरूम, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, जैसे आज मुझे बात करना अच्छा लगता है, मीटिंग्स में मीटिंग्स लेना अच्छा लगता है, लोगों से डिस्कस करना अच्छा लगता है, बिकॉज आपने सीखते रहना है। लर्निंग इज़ नॉट इन स्मॉल पार्ट, आपने हमेशा सीखना है। जैसे मैक्सिमम मैं यूट्यूब चैनल्स को बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा कोचिंग देते हैं, उनके क्लासेस लेक्चर्स होते हैं, उनको फॉलो करता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं जब भी किसी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, मेरे पास क्वालिटी होनी चाहिए। मैं किस पे बात करूँगा भाई? आज की डेट में चीज़ें इतनी फास्ट चेंज हो रही हैं, जैसे इन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस में आपका डे टू डे चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। अब गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, सिल्वर रेट क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही है, कमोडिटी की प्राइस अप एंड डाउन हो रही है। सो आपको वेरी अपडेट रहना है, और जब आप अपडेट रहेंगे तो आप स्मार्ट होंगे। तो बेसिकली ये जो फील्ड है वो यही मोटिवेट करता है कि आप इस चीज में आप मोटिवेट होते हैं, मतलब आप अपडेट होते हैं अपने आप को। ये आपको फील्ड इसलिए मोटिवेट, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि इस फील्ड में। और आज के टाइम ये फील्ड बहुत कोई कॉर्पोरेट से कम नहीं हो गया है। आपको अच्छी सैलरीज है, अच्छा एक्सपोजर है, जो एक समय नहीं था। तो अभी एकेडमिक्स हमें बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और आई थिंक सभी को लगना भी चाहिए, बिकॉज इज़ अ वेरी गुड करियर फॉर ऑल ऑफ देम। Thank you so much, Dr. Abhishek, for sharing your inspiring journey with us, your valuable insights and deep perspectives on education with us today. So, your experience as an educator, researcher, and academic leader have been truly enriching. Thank you once again on behalf of Edu TV. We sincerely appreciate your time, contribution, and we wish you continuous success in your academic and leadership journey. थैंक यू, Thank you थैंक यू, so थैंक यू much, सो sir. मच। This is Tanya signing off from Edu TV Studio. थैंक यू।